میں خان صاحب کے گھر موجود تھا۔ انہوں نے ایک پتلی سی فائل نکال کر میرے حوالے کی۔ میں نے فائل کھول کر اس میں موجود کئی کاغذات کا جائزہ لیا۔ اس دوران خان صاحب کہہ رہے تھے، میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرٹ ٹینک کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر کے اس فائل میں جمع کر دی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ یہ معلومات ذہن نشین کر کے پہلی فرصت میں یہ فائل تلف کر دینا۔ میں نے خان صاحب کی بات سن کر اقرار میں سر ہلایا۔ انہوں نے بات جاری رکھی، بولے، میں نے اس فائل کا سرسری جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص فضائی انجینئرنگ کا نابغہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا سائنسی ادارہ ہے۔ اگر جنگ عظیم دوم میں جرمنی کو شکست نہ ہوتی تو یہ شخص اپنے ملک کو فضائی جنگ کے شعبے میں ناقابل تسخیر بنا چکا ہوتا۔ ہندوستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے عجوبہ روزگار شخص کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ہندوستانی حکومت نے اسے واقعی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا بھرپور موقع دیا ہے تو ماروت طیارہ بلا شبہ ایک تباہ کن جنگی ہتھیار ہوگا۔ میں نے خان صاحب کی باتیں غور سے سنی اور پھر کہا، اگر یہ سچ ہے تو پھر اس پروجیکٹ کو ماروت طیارے کی وسیع پیمانے پر تیاری کے آغاز سے پہلے ہی نیست و نابود کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، اور میری رائے میں اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کرٹ ٹینک سے ہو کر ہی گزرتا ہے، اور اس سے قریب ہونے کی کوشش کے آغاز کے لیے ویش جی کی ہولی پارٹی بہترین موقع ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس تقریب کے حوالے سے مزید کیا معلومات مہیا ہو سکتی ہیں؟ خان صاحب کچھ کاغذات اور نقشوں کی مدد سے مجھے کافی معلومات مہیا کرتے رہے۔ اس دوران ہم نے کھانا کھایا، بہت عمدہ کافی بھی۔ پھر میں نصف شب کے بعد ان سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں واپسی کے سفر میں بہت خوش تھا۔ تاہم میں لکشمن کے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا تو اسے بند پایا۔ چوکیدار اسے مقفل کر کے شاید کسی کونے خدرے میں جا سویا تھا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، لیکن ہیڈ لائٹ کی گیٹ پر پڑنے والی روشنی بار بار جلانے بجھانے کے باوجود مجھے چوکیدار کی آمد کے آثار نظر نہ آئے۔ بالآخر میں نے ہارن بجایا، لیکن کوئی رد عمل نظر نہ آیا۔ میں انجن چلتا چھوڑ کر گاڑی سے اترا اور گیٹ کے پاس پہنچ کر سلاخوں کے درمیان سے اندر جھانک کر دیکھا۔ گیٹ میں اندر کی طرف موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے گیٹ کے دونوں ستونوں پر لگی روشنیوں میں اندر کوئی نقل و حرکت نظر نہ آئی۔ تبھی اچانک میری نظر چوکیدار کے کیبن سے باہر نکلے انسانی پیروں کے جوڑے پر پڑی۔ میں پہچان گیا، وہ چوکیدار ہی تھا جو غالباً کیبن کے فرش پر دراز تھا اور اتنی گہری نیند سویا ہوا تھا کہ گاڑی کے ہارن کی آواز سے بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ رات والے چوکیدار ارون لامبا کے لیے اپنی ڈیوٹی کی حساسیت کے باعث رات بھر بیدار اور ہر لمحے چوکنا رہ کر ڈیوٹی دینا لازم تھا، اور اس حوالے سے کسی غفلت یا سمجھوتے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس حوالے سے بہت سخت احکام لاگو تھے۔ میں جانتا تھا کہ اپنی نازک ڈیوٹی کے تقاضوں کو بالکل نظر انداز کر کے اس طرح گھوڑے بیچ کر سونا ارون کی نہ صرف کھڑے کھڑے چھٹی کروا سکتا تھا، بلکہ لکشمن جیسے اہم افسر کی زندگی خطرے میں ڈالنے پر اسے جیل کی سیر بھی کروائی جا سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ مستعد شخص اتنی سنگین غفلت کا مرتکب کیسے ہو گیا؟ میں نے سوچا، میرے لیے گیٹ پھاند کر اندر داخل ہونا بچوں کا کھیل ہے، لیکن کیا ایسا کرنا مناسب ہوگا؟ لیکن میرے پاس کوئی متبادل راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑا۔ میں گاڑی کی طرف واپس گیا اور انجن اور ہیڈ لائٹس بند کر کے گیٹ کی طرف واپس آیا۔ میں نے اپنا پاؤں گیٹ کی افقی سلاخوں میں پھنسایا اور اوپری سلاخوں کے نوکدار سروں سے خود کو بچا کر دوسری طرف اتر گیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ بنگلے میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں ڈھیلے قدموں سے چوکیدار کے کیبن کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانکا، مجھ پر انکشاف ہوا کہ ارون وہاں تنہا نہیں ہے۔ سانولی رنگت اور بھاری جسامت والی ایک ادھیڑ عمر عورت بھی سامنے کیبن کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہ بنگلے میں صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں پر مامور ملازمہ بھاونا تھی۔ میں پہلے اس کی وہاں غیر متوقع موجودگی پر چونکا، پھر توجہ سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ وہ بھی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس کے جسم پر موجود لباس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے فوراً اس کی طرف سے نظریں ہٹانا پڑیں۔ پہلے پہل یہ سب کچھ دیکھ کر میں خاصا حیران ہوا، لیکن پھر گہری نظر سے جائزہ لینے پر رفتہ رفتہ پورا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا، اور ساتھ ہی بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی۔ فرش پر بچھے گرم کمبل پر لملیٹ پڑے ارون کی بغل میں اور بھاونا کے سامنے بچھے ایک رومال پر ایک قاب میں مرغ کی بہت سی ہڈیاں اور ایک دو بچی ہوئی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چھبڑی میں ایک پوری اور ایک نصف چپاتی موجود تھی۔ قریب ہی بدیشی شراب کا آدھا پائنٹ اور سوڈے کی ایک بوتل بھی رکھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے لیے ان دونوں پر گزری واردات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔
औलाद से महरूम होने की वजह से घर से निकाली गई भावना और अपनी बीवी बच्चों से सैकड़ों मील दूर मुलाजिमत करने पर मजबूर अरुण के दरमियान शायद काफी अरसे से अवैध संबंध चल रहा था। अपना धर्म भ्रष्ट होने से दिलबर्दाश्ता राजीव गोश्त पर मुश्तमिल खाने खुद पहुंचाने की बजाय भावना के हाथों मालिकों की खिदमत में भिजवाता होगा, और भावना ऐसे खानों पर बाकायदगी से या कम से कम वक्तन फवक्तन हाथ साफ करती होगी और रात को गोश्त के रस्सियां अपने रांचे के पास ले आती होगी। कीमती शराब भी शायद लक्ष्मण और रागिनी ही के जखीरे से चुराई गई होगी। ये दोनों अक्सर मुफ्त के इस माल पर मिलकर मजे उड़ाते होंगे। आज भी भावना ने अपने मालिक और मालिकन के लिए भिजवाए गए मुर्ग की बोटियों पर हाथ साफ किया होगा और फिर रात गहरी होते ही अपने दिलबर का दिल खुश करने के लिए छुपा कर ले आई होगी। उन्होंने राजीव की उम्दा तबाखी का मजा तो लिया, लेकिन साथ ही मेरी कारीगरी ने भी अपना काम दिखाया और अब ये दोनों ख्वाबावर सफूफ के कारगर होने की जीती जागती तस्वीर बने वहां मदहोश पड़े दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि पानी का गिलास सर पर उलटकर अरुण को जगा दूं। अपने फर्ज को पसे पुश्त डालकर बंगले की एक मुलाजिमा के साथ रंगरलियां बनाते हुए इस तरह रंगे हाथों बल्कि शराबोर हालत में पकड़े जाने पर ये मेरे सामने हमेशा के लिए भीगी बिल्ली बन जाएगा। लक्ष्मण के बंगले में इतनी अहम जिम्मेदारी पर तैनात उस शख्स की दुखती रग हाथ में आना मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी नाजुक मरहले पर मैं उसे अपनी उंगली के इशारों पर नचा सकता हूँ। शायद ये औरत भी मेरे किसी काम आ जाए। मैंने पानी का जग उठाया ही था कि एक और ख्याल ने मुझे रोक दिया। मैं बेशक उन्हें रंगे हाथों पकड़कर वक्ती तौर पर अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन ये रात गुजर गई तो ये दोनों मेरा दावा बल्कि इल्जाम बआसानी झुटला सकते हैं। मुझे उनके नाजेबा ताल्लुक और अरुण की तरफ से अपने फर्ज से संगीन गफलत बरतने का कोई और ठोस सबूत दरकार है जो कि नाकाबिल तरदीद हो, और ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने अरुण की जेबें टटोली और गेट पर लगे ताले की चाबी बरामद कर ली। मैंने गेट खोला और फिर गाड़ी चलाता हुआ बंगले में दाखिल हुआ। गाड़ी को उसकी मुकर्रर जगह खड़ी करके मैंने उसके डैशबोर्ड के खाने से वो थैला निकाला जो खान साहब ने मेरे हवाले किया था। वहां से मैं दोबारा गेट पर पहुंचा और उसे अंदर से बंद कर दिया, अलबत्ता ताला नहीं लगाया। चौकीदार के कैबिन के अंदर की सूरत हाल जूं की तूं थी। मैंने अरुण और भावना को उनके हाल पर छोड़ा और अनेक्सी का कुफल खोलकर अपने कमरे में आ गया। मैंने खान साहब से हासिल शुदा सामान को अपने बिस्तर पर रखा और दूसरे कैमरे में किताबों की संदूक में छुपाया हुआ सामान का थैला भी अपने कमरे में ले आया। मैंने उस थैले में से इंतहाई छोटा सा लेकिन जदीद तरीन कैमरा निकाला और उसमें मखसूस फिल्म रोल को लोड करके जेब में डाल दिया। कमरे से निकलने से पहले मैंने दोनों थैले फिलहाल बिस्तर के नीचे छुपा दिए। चंद ही लम्हों के बाद मैं एनेक्सी का दरवाजा मुकफ्फल करके मोहतात लेकिन तेज कदमों से बंगले के गेट की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान मेरी नजरें आसपास का जायजा ले रही थी। मुझे पूरा माहौल ख्वाब गफलत में डूबा नजर आया। इसमें ऐसी कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी। राजीव मेरे सामने इकरार कर चुका था कि वो रात होते ही नशे में धुत अंटा गफील हो जाता है। लक्ष्मण और रागिनी को ख्वाब आवर दवा पहले ही बिस्तर पर ढेर कर चुकी होगी, जबकि रागिनी का ड्राइवर यश और माली गणपत शायद बंगले के अकबी क्वार्टरों में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे होंगे। मैंने गेट एक बार फिर खोला और अंदर बाहर से कई जावियों से तस्वीरें खींची। गेट बंद करके मैं एक बार फिर चौकीदार के कैबिन की तरफ आया और फिर एक दूसरे से जुड़कर नींद के मजे लूटते तोता मैना के उस जोड़े की करीब और दूर से कई तस्वीरें बनाई। अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैंने कैमरा एहतियात से जेब में रखा और फिर पानी से निस्फ भरा जग बेधड़क उन दोनों पर उलट दिया। उनकी नींद बिलाशुबा बहुत गहरी थी, लेकिन ठंडे पानी का तरेड़ा मौसम बहार की अच्छी खासी खुनक रात में उनके खाबीदा आसाब पर कोड़े की तरह लगा होगा। उन्होंने एक साथ जोरदार झुरझुरी ली और फिर उनके मुंह से बेहंगम चीखें और बेतरतीब अल्फाज बरामद हुए। उसके साथ ही उन्होंने आंखें खोल दी। उनके होशो हवास पूरी तरह बहाल होने में थोड़ी देर लगी। अरुण खोई खोई नजरों से चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में शनासाई की चमक लहराई। लेकिन उससे पहले भावना बोल पड़ी, हाय भगवान, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया मुझे? इस दौरान वो जल्दी जल्दी अपना बेतरतीब लिबास भी ठीक करती जा रही थी। वो चालाक औरत चंद लम्हों में सूरत हाल भाप गई थी और उसने फौरन ही हैरानी और परेशानी और अपनी मासूमियत का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। उसके बरक्स अरुण बुत बना मेरी शक्ल देखे जा रहा था। मैंने भावना के वावेले को नजरअंदाज करते हुए अरुण को मुखातिब किया, ये टुक टुक क्या देखे जा रहे हो अरुण जी? मुझे पहचाना नहीं क्या अभी तक? उसने चौंक कर कहा, हाँ जी बिल्कुल पहचान लिया है। तुम रोहित जी हो ना, रागिनी मैडम की महिला संगठन के मैनेजर? मैंने कहा, शाबाश। अब अपनी इस नाइट विजिटर को कहो कि यहाँ से तशरीफ ले जाए।
किसी ने देख लिया तो खामखा का तमाशा बन जाएगा। मुझे अरुण का चेहरा सफेद पड़ता महसूस हुआ। भावना भी एकदम चुप हो गई थी। अरुण ने उसे डपट कर कहा, सुना नहीं तुमने साहब क्या कह रहे हैं? जाओ यहाँ से फटाफट, और ये बर्तन भी समेट कर ले जाओ। और हाँ, राजीव भैया को धन्यवाद कहना, बहुत अच्छी मुर्गी बनाई थी। भावना ने इतनी आसानी से बगैर किसी पुचकिच या सरजनिश के जान छूटती देखी तो उसके हाथ पैर और भी तेजी से चलने लगे और वो खाने के अलावा पीने के बर्तन भी समेट कर पलक झपकने में वहां से उड़नछू हो गई। उसके रुखसत होने के बाद मैंने गहरी नजरों से अरुण को देखा। इस दौरान वो उठकर बैठ गया था और उसने दीवार के सहारे खड़ी बंदूक भी हाथ में पकड़ ली थी। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसे बखूबी एहसास था कि वो अपनी मौजूदा और कुछ देर पहले की हालत के बारे में कोई मुनासिब सफाई पेश नहीं कर सकता। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। जब उसने कुछ न कहा तो मैंने अपना लहजा गंभीर बनाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है तुमने अपनी ड्यूटी छोड़कर ये सब गंदे कर्म करने से पहले अपने लिए नई नौकरी का बंदोबस्त कर लिया होगा। मगर मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी तुम्हें नौकरी से निकालने की बजाय जेल में सड़वाना ज्यादा पसंद करेंगे। यकायक उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लगा कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। वो हकलाया, रोहित जी, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे पर दया करो, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अचानक उसने बंदूक फेंक कर मेरे पांव पकड़ लिए और बाकायदा फूट फूट कर रोने लगा। वो साथ साथ अपने खानदान की बेपनाह गुर्बत, बीवी की बीमारी और छोटे छोटे बच्चों की दुहाई भी दे रहा था। मुझे उसके इतनी जल्दी खुल जाने की तवक्को नहीं थी, ताहम मैंने उसकी मजीद थोड़ी सी खिंचाई मुनासिब समझी। कहा, यार तुम्हें इतना तो ख्याल करना चाहिए कि अपनी प्रेमिका को किसी कोने में ले जाकर उसके साथ चोंच लड़ाओ। बाबा जी का कोठा समझा है कि खेले कूदे और लंबी तान कर सो गए। उसने शर्मिंदा और कुछ परेशान से लहजे में कहा, मैं सौगंध खा कर कहता हूँ रोहित जी, हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे थे। वो मुझे पसंद करती है और मेरे लिए घर से खाना लाती थी। बस खाते खाते भगवान जाने कैसे आंख लग गई। मैंने आंख मार कर कहा, मैंने सब देखा है अरुण भैया, खाने के साथ पीने का भी पूरा प्रोग्राम चला है और बेचारे कपड़ों के साथ। इतना कहकर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसने कोई वजाहत करना चाही लेकिन फिर माफी में ही आफियत समझी। बोला, मैं मानता हूँ बहुत संगीन गलती की है मैंने। मुझे तो रात को घंटा भर भी कमर टिकाने की इजाजत नहीं है। इसी शर्त पर तो नौकरी पर रखा था लक्ष्मण जी ने। मैंने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, ठीक है अरुण भैया, ये बात बस हम दोनों तक रहेगी। मुझे भी बहुत धक्के खाने के बाद ये सुथरी नौकरी मिली है। तुम्हें बेरोजगार करके मुझे क्या मिलेगा? ये लो गेट के ताले की कुंजी, आइंदा एहतियात करना, किसी और ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने हद दर्जे आजिजी और ताबेदारी के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरा एहसान याद रखने का अहद किया। मैं उसे गेट के सामने मुस्तैद खड़ा छोड़कर अपने कमरे में आ गया। ताहम मेरे ख्वाबों की वादी की सैर पर जाने में अभी देर थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर जरूरी आलात का थैला संभाल कर एनेक्सी से निकल आया। गेट से एनेक्सी बराह रास्त नजर नहीं आती थी, अलबत्ता भावना की नजरों में आने का खतरा जरूर मौजूद था। लिहाजा मैं बंगले की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए इर्द गिर्द के माहौल का बगौर जायजा लेता रहा। नौकरों के क्वार्टर बिल्कुल आखिरी सिरे पर थे और उधर मुकम्मल सन्नाटा तारी था। मैंने रफ्तार तेज कर दी और रसोई घर के पास पहुंचकर धड़कते दिल के साथ दरवाजे को अंदर धकेला। अगले ही लम्हे मैं खुशी से झूम उठा। दरवाजा खुला हुआ था। शायद ये कार्रवाई भावना ने की होगी। वो राजीव के नशे में टुन होने का फायदा उठाकर यहाँ से खाना गर्म करके ले गई होगी। मैंने रसोई घर के नीम तारीख माहौल में कदम रखा और फिर सीधा अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। धकेलते ही दरवाजा खुल गया। सामने ही राजीव मुंह लपेटे सोता नजर आया। वो फर्राटेदार खर्राटे ले रहा था। मैं उसके कमरे से गुजरकर बंगले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी मगर सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बंगले की नशिस्तगाह से गुजरकर सामने वाली राहदारी में पहुंचा और फिर दरवाजा खोलकर मुताला गाह में पहुंचा। मैंने अपने पीछे दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और बल्ब रोशन करके गहरी नजरों से आसपास का जायजा लेने लगा। बिलाखिर मैंने सामने अलमारी के ऊपर रखे एक बड़े से गुलदान का इंतखाब किया। उसे उतारा तो वो मेरे अंदाजे से ज्यादा भारी साबित हुआ। ये अच्छी बात थी क्योंकि उसके वजन की वजह से बार बार उसकी जगह बदल जाने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने मसनूई फूलों को इधर उधर हटाया और फिर अपने थैले से एक छोटा सा लेकिन खासा ताकतवर कैमरा निकालकर इस तरह नस्ब कर दिया कि उसे काफी करीब से भी नहीं देखा जा सकता। खान साहब ने बताया था कि ये कैमरे दरअसल रेडियो ट्रांसमीटर्स के जरिए इस्तेमाल होते हैं। मैं ट्रांसमीटर्स पर बंगले के इन मकामात पर होने वाली गुफ्तगू सुन सकता था।
जहां ये ट्रांसमीटर और कैमरे नस्ब होते और फिर जब जरूरत महसूस होती एक आले के मुख्तलिफ बटन दबाकर उस मकाम की तस्वीरें उतार लेता। इन कैमरों में माइक्रो फिल्म रोल लगते थे। जदीदतरीन और लगभग माचिस की जिसामत का रेडियो ट्रांसमीटर लगाने के लिए मैंने रागिनी देवी की मुताल्ले की मेज की दराज के अकब का इंतखाब किया। वो मेज के नीचे घुसकर तलाश करने पर भी बमुश्किल ही दिखाई दे सकता था, जबकि उसके जरिए मेज से 10-15 फुट के दायरे में होने वाली हर गुफ्तगू में अपने कमरे के रेडियो रिसीवर में न सिर्फ साफ साफ सुन सकता था बल्कि रिकॉर्ड भी कर सकता था। अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं मुताल्ला गाह से निकला और वापस हॉल नुमा नशिस्त गाह में पहुंच गया। वहां मुझे अपने मकसद के लिए मुनासिब जगहें तलाश करने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अलबत्ता दीवार पर नस्ब बहुत बड़े आईने के चौबी चौखटे के ऊपरी हिस्से के एक आराइशी कटाव में कैमरा बड़ी उम्दगी से फिट हो गया और 8-9 फुट की बुलंदी पर बिल्कुल करीब से जाकर जायजा लिए बगैर उसे देखना मुश्किल था। हत्ता के रोजमर्रा सफाई में उसका नजर आना मुश्किल था। अलबत्ता रेडियो ट्रांसमीटर छुपाने के लिए मुनासिब जगह के इंतखाब में मुझे खासी मुश्किल पेश आई। दरअसल वहां रेडियो ट्रांसमीटर छुपाने के लिए मुनासिब जगहों की तो कोई कमी नहीं थी। अलग अलग दीवारों के साथ रखी टेढ़ी मेढ़ी 3 टांगों वाली मेजें, जिस पर दबीज मखमली चादर पर कीमती लैंप और दीगर आराइशी अशिया सजी थी। नशिस्त गाह के ऐन वस्त में वैसी ही टेढ़ी टांगों वाली संगमरमर की भारी गोल मेज, जिस पर कुदरती लिबास में आबनूस से तराशी एक रक्कासा का मुजस्समा दावत नजारा दे रहा था। एक बड़ी सेठी, दर्जन भर आरामदेह गद्दियों वाली कुर्सियां और सोफे। ताहम मैंने काफी सोचने के बाद 6 कुर्सियों और उनके दरमियान रखी एक भारी भरकम लेकिन कम ऊंची मुस्ततील मेज से बिल्कुल मुल्हिक चौबी कार्निश का इंतखाब किया। कम चौड़ाई वाली उस कार्निश पर भी तरह तरह की आराइशी अशिया मौजूद थी। मैंने उसके निचले खला में रेडियो ट्रांसमीटर फिट किया, जिसे तलाश करने के लिए उसकी वहां मौजूदगी से वाकफियत जरूरी थी। अब मुझे सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था। मैं हॉल के आखिरी सिरे पर वाक़े चौड़ा सा जीना चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो ख्वाबनाक सी धीमी रोशनी में वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां जमीनी मंजिल से कहीं ज्यादा बड़ा गोल कमरा मौजूद था। अलबत्ता यहाँ के फर्नीचर की साख्त कुछ अलग थी, यानी दरमियान में बहुत बड़ी जगह खाली थी, जबकि दीवारों के साथ साथ दबीज चरमी सोफे रखे हुए थे, जिनके सामने सागवान की लकड़ी की मुस्ततील मेजें रखी थी। एक तरफ बड़ा सा शराब का बार बनाया गया था, एक तरफ पियानो भी रखा नजर आया। फर्श पर एक से दूसरी दीवार तक दबीज कालीन बिछा हुआ था। छत पर लकड़ी के 5 परों वाले 2 पंखे नस्ब थे। निचली मंजिल की तरह यहाँ भी आराइशी अशिया और कीमती तस्वीर की भरमार थी। छत पर एक छोटा और एक बड़ा बिलोरी फानूस लटका हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि वहाँ कम से कम 30 मेहमान बआसानी बराजमान हो सकते थे। वहाँ से एक बड़ा दरवाजा बंगले के टेरिस में खुलता था। तहम वहाँ के उस सारे माहौल का तफसीली जायजा मैंने बाद में लिया था। उससे पहले वहाँ पहुँचते ही मेरी नजरों ने उस हॉल कमरे में खुलने वाले 3 दरवाजों का जायजा लिया था। उनसे 2 मुल्हिक थे और एक निस्बतन बड़ा दरवाजा मुखालिफ समत में वाक़ था। उस वक्त तीनों दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि वो तीनों ख्वाबगाहें हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनमें से 2 ख्वाबगाहें लक्ष्मण और रागिनी देवी के ज़ेरे इस्तेमाल रही होंगी। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और साथ साथ वाक़े 2 कमरों में से एक का दरवाजा धीरे से धकेला। वो बेआवाज खुलता चला गया। मैंने एहतियात से अंदर झांका। कमरे में अच्छी खासी ताकत का एक कुमकुमा रोशन था, जिसकी रोशनी में सामने एक वसी मसहरी नजर आई, जिस पर कोई लिहाफ ओढ़े सोया हुआ था। ताहम इतनी दूर से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कौन है। मैं कुछ देर वहीं ठहर कर महवे ख्वाब शख्स की नींद गहरी होने का अंदाजा करता रहा। बिलाखिर मैं बेआवाज कदमों से आगे बढ़ा और मसहरी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तभी मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा। बिस्तर पर मौजूद अफराद की तादाद 2 थी और सरतपा लिहाफ में पोशीदा होने के बावजूद अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो दोनों मर्द और औरत हैं। मैं हैरानी और परेशानी के आलम में सोच रहा था कि ये कमरा रागिनी के सिवा और किस औरत की ख्वाबगाह हो सकता है। मेरे इल्म के मुताबिक तो उस बंगले में रागिनी और भावना ही 2 औरतें थीं और जाहिर है उस ख्वाबगाह में भावना की मौजूदगी का क्या जवाज हो सकता है। क्या उसने चौकीदार के अलावा लक्ष्मण पर भी डोरे डाल रखे हैं? लेकिन लक्ष्मण जैसे दौलतमंद और बुलंद ज़ौक़ शख्स को उस कम शक्ल और बेडोल जिस्म की औरत में भला क्या कशिश महसूस हो सकती? लेकिन फिर उस ख्वाबगाह में और कौन औरत इतनी बेफिक्री की नींद सो सकती है? जाहिर है ज्यादा इम्कान यही है कि वो रागिनी ही होगी। लिहाफ में पोशीदा उस औरत की जिस्मानी साख्त से भी यही लग रहा है। लेकिन अगर ये औरत वाकई रागिनी है तो उसके बिस्तर में किसी मर्द की मौजूदगी उसके किरदार का कुछ और ही तरह कच्चा चिट्ठा खोल रही है।
لیکن اگر بالفرض یہ روشن خیال عورت اپنی فطری خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی مرد سے خفیہ تعلقات رکھتی بھی ہے تو کیا اس طرح اپنے سگے بھائی کے گھر میں بلکہ اسی منزل پر اس کی موجودگی کے باوجود اسے اپنی خوابگاہ میں بلانے جیسی بے باکی کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ اور اسی قیاس سے منسلک سوال، کیا وہ شخص باہر سے بنگلے میں آیا ہے یا اسی بنگلے کے مرد باسیوں میں سے کوئی ہے؟ یعنی گھر کا بھیدی راگنی کا شریک بستر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ اسی بنگلے میں رہنے والا کوئی مرد ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں چوکیدار کو جس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں اس کی روشنی میں تو وہ خود بخود ممکنہ افراد کی فہرست سے باہر ہو گیا۔ راجیو کو میں ابھی اس کے کمرے میں نشے میں دھت چھوڑ کر آیا ہوں۔ لکشمن کے سوا اب لے دے کر راگنی دیوی کا ڈرائیور یش ہی رہ جاتا ہے۔ کم تر سماجی مرتبے کے باوجود وہ اچھا خاصا قبول صورت صحت مند بندہ ہے۔ عمر بھی زیادہ نہیں، 30 اور 40 کے درمیان ہوگا۔ یعنی راگنی جیسی محرومیت کا شکار عورت کی خواہشات کی تسکین کے لیے انتہائی موزوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے راگنی کے شبینہ ساتھی کا پتہ لگا لیا ہے۔ لکشمن کے علم میں یا لا علمی میں یش ہی اپنی مالکن کی خوابگاہ کا مہمان بنا ہوا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسے باقاعدگی سے مدعو کیا جاتا ہو، اور کون جانے وہ اپنی ان اضافی خدمات کا معقول معاوضہ بھی وصول کرتا ہو۔ قوی امکان یہ ہے کہ یش بھی خواباور دوا والے کھانے سے پیٹ بھرنے کے نتیجے میں عیاشی کا کھیل کھیلنے سے پہلے ہی یا ابتدائی مراحل میں ہی انٹا غفیل ہو گیا ہوگا۔